Pledge. I, Kamaljeet, commit to be vigilant and bear in my mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Hello students, welcome to biology class. In previous class, we start our 9th chapter from biology, that is useful microorganisms, animal and plants. Today we will discuss useful animals. Animals are very useful to us as we get food, wool, milk, honey, etc. from them. Animals are used for various purposes such as transportation, plugging, etc. In India, domestic animals play an important role. The branch of biology which deals with breeding, feeding, curing and shelters of domesticated animals is called animal husbandry. ओके, एज वी ऑल नो डैट बच्चा कि जो एनिमल्स है वो ज़्यादा यूज़फुल है, हमको फूड एनिमल से मिलता है, वूल, मिल्क, हनी, दिस ऑल आर थिंग्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. तो एक एनिमल्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हेल्प करते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में भी हेल्प करते हैं. जो डोमेस्टिक एनिमल्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जो ब्रांच बायोलॉजी की ब्रीडिंग, फीडिंग, केयरिंग, शेल्टर ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के ऊपर स्टडी करती है उसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं. The animals that are domesticated for use such as food and work are called livestock. Livestock can be categorized into the following classes. Okay. Now, first, milk yielding animals. Milk animals बोलते हैं जैसे cow, goat and buffalo, from where we get milk. जो animals हमको milk मिलता है, right? Meat and egg yielding animals, example poultry, sheep and pig. Draught animals, cow, buffalo, goat, horse, camel, elephant and mule. Animals yielding wool, hiders, leather. For example, cow, goat, buffalo and sheep. Other useful products from animals, for example, honey and silk. Okay. Now, milk yielding animals first of all. Milk producing animals like cattle such as cow, buffalo, goat and camels जो milk produce करते हैं animals, right? उसको milk animals भी बोलते हैं. जो मिल्क ऑफ बफेलो कंटेन मोर फैट देन काउस मिल्क. जो मिल्क बफेलो का जो मिल्क होता है उसमें ज़्यादा फैट होता है एज कम्पेयर टू काउ मिल्क. बफेलो आर द मेजर सोर्स ऑफ मिल्क इन अवर कंट्री. Bullock is an important animal for farmers. It is used for plugging the field, transportation and many other agriculture activities. The dung of animals is also very useful in gobar gas plant to produce biogas. Dung cakes are used as a fuel in villages. ऐस बच्चा हमको पता है कि जो डंग ऑफ एनिमल्स का डंग होता है उससे गोबर गैस प्लांट में यूज़ होता है जिसकी वजह से हमको बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं हम काउ डंग से. और वैसे ही जो डंग केक्स होते हैं उसको विलेजेस में एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं. आपने मोस्ट प्रोबेबली जो विलेजेस में रहते हैं उन्होंने देखा होगा. नाउ ब्रीड्स ऑफ काउ. देयर आर 3 ब्रीड्स ऑफ काउ that are reared in India. 3 breeds के काऊ होते हैं. सबसे पहले इंडिजीनियस ब्रीड. इंडिजीनियस ब्रीड क्या होते हैं? दिस ब्रीड्स आर नोन एज देसी ब्रीड्स. फॉर एग्जाम्पल रेड, सिंधी, गिर एंड साहिवाल. इंडिजीनियस ब्रीड क्या होते हैं? इनको देसी ब्रीड्स भी बोलते हैं. सो दिस टाइप ऑफ काऊ की जो ब्रीड होती है इसको हम इंडिजीनियस ब्रीड बोलते हैं और देसी ब्रीड भी बोलते हैं. अनदर वन इज एक्सोटिक ब्रीड. एक्सोटिक ब्रीड क्या होता है? दिस ब्रीड्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज. फॉर एग्जाम्पल हॉल्स्टीन फ्रिंचिस, फ्रीसियन, ब्राउन स्विस एंड जर्सी. एक्सोटिक ब्रीड्स क्या होते हैं? ये ऐसी ब्रीड्स होती हैं जिसको दूसरी कंट्रीज से एक्सपोर्ट करते हैं. लुक, हॉल्स्टीन, फ्रीजन. सो ये टाइप की जो काउज होती हैं. नाउ क्रॉस ब्रीड. नाउ व्हाट इज क्रॉस ब्रीड? दिस ब्रीड्स आर डेवलप्ड बाय मैचिंग एक्सोटिक ब्रीड्स विद इंडिजीनियस ब्रीड. ये जो ब्रीड है वो डेवलप होती है जब एक्सोटिक ब्रीड इंडिजीनियस ब्रीड के साथ मेटिंग होती है उनकी. देयर मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी इज 2 or 3 टाइम्स मोर देन इंडिजीनियस वंस. इनकी जो मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी 2 या 3 टाइम्स बेटर होती है इंडिजीनियस वन से. फॉर एग्जाम्पल करंट फ्राइज, फ्रिसवॉल एंड करंट स्विस. दिस इज फ्रिसवॉल दैट वी कॉल क्रॉस ब्रीड. नाउ ब्रीड ऑफ बफेलोस.
दे आर इंक्लूडेड द फॉलोइंग ब्रीड। सबसे पहले मुर्रा, इट इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट ब्रीड ऑफ बफेलो इन हरियाणा एंड पंजाब। ये जो ब्रीड है ये बेस्ट ब्रीड होती है बफेलोस की और ये हरियाणा और पंजाब में ज़्यादातर मिलती है। द मिल्क यील्डिंग ऑफ दिस ब्रीड इज़ अबाउट 2000 लीटर पर लैक्टेटियंस। जो इसकी मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी होती है वो 2000 लीटर होती है पर लैक्टेटियन। महासाना, द ब्रीड इज़ कॉमनली फाउंड इन गुजरात। ये जो ब्रीड है वो मोस्टली गुजरात में मिलती है। जिनकी एवरेज मिल्क यील्ड रेंजेस होती है वो 1200 2500 लीटर्स पर लैक्टेशन होती है। ना सूरती, सूरती इज फाउंड इन फ्यू डिस्ट्रिक्ट। गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये मिलती है। इनकी जो यील्डिंग कैपेसिटी होती है, मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी वो 1500 लीटर होती है। नाउ मैनेजमेंट ऑफ मिल्क एनिमल। मिल्क एनिमल्स के मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? द एनिमल शेल्टर शुड हैव द फॉलोइंग। अलग अलग मतलब कि इनके लिए एक अप्रोप्रिएट शेल्टर और फीडिंग रिक्वायरमेंट होती है, राइट? तो एनिमल शेल्टर शुड बी क्लीन एंड वेल वेंटिलेटेड। जो एनिमल्स का शेल्टर है वो क्लीन और वेंटिलेटेड होना चाहिए। देयर शेड्स शुड बी वेल कवर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड। उनके जो शीट्स हैं वो वेल कवर्ड होने चाहिए और जिनकी वजह से वो रेन, हीट और कोल्ड से उनको प्रोटेक्ट कर सकें। द शेल्टर शुड बी बिग इनफ टू प्रोवाइड सफिशिएंट स्पेस टू द एनिमल्स फॉर स्टे। जो शेल्टर्स है वो इतने प्रॉपरली इनफ बिग होने चाहिए कि वो सफिशिएंट स्पेस एनिमल्स को स्टे करने के लिए मिल सके। इट शुड बी हैव क्लियर ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर भी उनको प्रॉपरली क्लियर हमको देना चाहिए। द शेल्टर शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि हार्म कर सकते हैं ना, लाइक मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी, मिल्क यील्डिंग एनिमल्स को हार्म कर सकते हैं प्रीडेटर्स, लायंस, टाइगर्स, उनसे प्रोटेक्टेड होने चाहिए। नो फीडिंग। द एनिमल्स फूड कंटेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड फीड। ऐसे एनिमल्स को हमने फूड देना है जिनमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हों, जिनकी वजह से उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर हो, उसको हम फीड बोलते हैं। कैटल फीड इज ऑफ टू टाइप। जो कैटल फीड होती है वो 2 टाइप की होती है। व्हाट आर दे? सबसे पहले रफेज। रफेज हैज मोर फाइबर कंटेंट। इट इंक्लूड्स फीड सच एज हे, स्ट्रॉ, फॉदर, लिग्यूम्स, स्लैग, कोकोपी एंड सो ऑन। रफेज क्या होता है? जिसमें फाइबर कंटेंट होता है, इसमें सब कुछ ये सब इंक्लूड होता है ना। कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट है, इनमें लो फाइबर मैटर होते हैं लेकिन इनमें न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं। जैसे दे इंक्लूड ग्रेन सच एज बाजरा, ज्वार, राइस, बार्ले, ग्राम, चेफ, व्हीट, ब्रान, हस्क, ऑयलसीड्स एंड मोलासेस एक्सेट्रा। सो ये क्या है? 2 टाइप्स की कैटल फीड्स है, रफेज एंड कॉन्सेंट्रेट। डिजीज ऑफ कैटल। अब कैटल्स को किस टाइप की डिजीज हो सकती है? लाइक ह्यूमंस, कैटल्स ऑल्सो सफर फ्रॉम डिजीज बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस। जैसे ह्यूमंस को डिजीज होती है बैक्टीरिया एंड वायरस की, वैसे ही कैटल्स को भी हो सकती है। दिस ऑल आर द लिस्ट ऑफ कॉमन डिजीज इन कैटल। जैसे एंथ्रैक्स, ये शीप्स, हॉर्स, कैटल गॉट में हो सकती है। कॉजेज क्या है? बैक्टीरिया। और इसके ये सिम्टम्स क्या है? स्वेलिंग ऑन बॉडी पार्ट स्पेशली ऑन नेक अकम्पनीड विथ हाई फीवर। रेंडर पेस्ट ये कैटल्स में होते हैं, ये वायरस होता है, जैसे हाई फीवर हो गया, लॉस ऑफ एपिटाइट, सेलिवेशन, एक्सेसिव डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट काउपॉक्स वायरस है, ये स्मॉल नोड्यूल्स हो जाते हैं बॉडी में। फूड एंड माउथ डिजीज जैसे कैटल, शीप, स्वाइन गॉट, ये वायरस है, इसमें सेलिवेशन, blisters on mouth, feet and under high fever, loss of appetite. So these all are the common disease of cattle. White revolution. White revolution is also termed as Operation Flood. It pertains to the rapid development in milk production that took place in India after 1960. White revolution basically बच्चा ये development, food की rapid development के लिए हुआ था। ये 1960 के बाद इंडिया में आया था। Verghese Kurian was born on 26 November 1921 at Kerala. He is called the father of White Revolution. जो वर्गीज कुरियन से थे वो बॉर्न हुए थे 26 नवंबर 1921 केरल में, उनको फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है। क्यों? He was the chairman of the Gujarat Cooperative Marketing Federation. He is credited with being the architect of Operation Flood, the largest dairy development program in the world. बच्चा ये क्या है? ये चेयरमैन है गुजरात कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के और इन्होंने लार्जेस्ट डायरी डेवलपमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड में बनवाया था। ही इंजीनियर द वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया एंड मेड इंडिया द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इन्होंने इंडिया को एक लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर वर्ल्ड में
सबसे लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर का अहदा दिया था. ही एफर्ट चेंज इंडिया फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर एंड इट इज कॉल्ड द वाइट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया. वाइट रेवोल्यूशन क्यों हुआ था बच्चा? क्योंकि इनकी एफर्ट्स की वजह से इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर हुए और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ. मिल्क इंडिया से सबसे ज़्यादा अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट हुआ. तो एक रेवोल्यूशन का वर्क हुआ था, एक रेवोल्यूशन चेंजेस आया था इंडिया में. दैट्स वाई वाइट रेवोल्यूशन नाम दिया गया था. दिस प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड बाई इंडियन नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड इन 1970. ऑब्जेक्ट क्या थे इस प्रोग्राम्स के? वॉज टू क्रिएट अ नेशन वाइड मिल्क ग्रिड. इट इज also help in the reduction of the malpractices by milk traders and merchants. The main objective of white revolutions are increased milk production, increase in rural income, fair prices for consumers. क्या क्या मेन ऑब्जेक्ट था? मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करना था उन्होंने, रूरल इनकम को इंक्रीज करना था, फेयर प्राइजेस कंज्यूमर को प्रोवाइड करनी थी, फेयर प्राइजेस में मिल्क. सो दिस इज कॉल्ड वाइट रेवोल्यूशन. Now meat and egg yielding animals. Rearing of animals such as hen, duck, geese, turkey and doves to get meat and egg is known as poultry. Poultry बोलते हैं जहाँ से हमको egg मिलता है. Domestic birds give us meat and egg. The egg and meat are rich in protein, fat and vitamins, minerals such as iron, calcium and phosphate. जो meat से egg से हमको different type of minerals, vitamins मिलते हैं. पोल्ट्री फार्मिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग पोल्ट्री बर्ड्स फॉर एग्स एंड मीट्स. पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है बच्चा? यहाँ पर बर्ड्स को रेज करवाते हैं और वहाँ से एग्स और मीट्स हमको प्रोवाइड होते हैं. एंड एग लाइंग पोल्ट्री इज कॉल्ड एग और लेयर और एंड द पोल्ट्री रेयर फॉर द ऑब्टेनिंग मीट इज कॉल्ड चिकन और ब्रॉयलर. जहाँ से एग मिलते हैं एगर और लेयर बोलते हैं और जहाँ पर चिकन रखते हैं वहाँ पर हम ब्रॉयलर बोलते हैं. Poultry farming is undertaken basically to raise domestic fowl for egg production for chicken meat. Breed of hens. अब hen की different type की breeds होती हैं. Indigenous breed are not good egg layer but they provide high yield of meat. जो indigenous breed होती है वो good egg layer नहीं होते लेकिन वो proper meat provide करते हैं. The main indigenous breed include Asil, Becerra, Chittagong and Brahma. Asil are Indian game is the most popular breed of India and selected for poultry farming. The breed provide high yield of meat and also a good egg layer. The average weight of cock varies from 4 to 5 kgs and hen from 3 to 4 kgs. जो इंडिजीनियस ब्रीड है ये बेसिकली इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. जो एवरेज वेट होता है कॉक का 4 to 5 kg होता है और हेन का 3 to 4 kg होता है. एक्जॉटिक ब्रीड. दीज आर मॉडर्न ब्रीड फॉर चिकन. ये मॉडर्न ब्रीड है चिकन का. दे आर एक्सीलेंट एग लेयर एंड गुड मीट प्रोड्यूसर्स. ये एक्सीलेंट एग लेयर है और एक गुड मीट प्रोड्यूसर है. दिस इंक्लूड ब्रीड विच आर प्रोड्यूस आउटसाइड इंडिया. जो ये ब्रीड है वो इंडिया के आउटसाइड में प्रोड्यूस होता है. वाइट रॉक, ब्लैक मिनॉर्क, रॉड आइलैंड रेड, ब्लैक गेंट, वाइट लिगॉन आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एक्सॉटिक ब्रीड. दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सॉटिक ब्रीड फ्रॉम वेयर ये अपने इंडिया से बाहर प्रोड्यूस होते हैं. इम्प्रूव्ड क्रॉस ब्रीड. नाउ दे आर बेटर देन ईदर ऑफ इट्स पेरेंट्स. ये अपने पेरेंट्स से ज़्यादा बेटर हो सकते हैं जैसे क्रॉस ब्रीड होते हैं. ये हाई एग लाइक कैपेसिटी होती है. ILS 82, HS 260, BSL आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉस ब्रीड. ये क्रॉस ब्रीड्स है बच्चा. क्रॉस ब्रीड कैसे? एक्सॉटिक ब्रीड और इंडिजिनियस ब्रीड की मेटिंग को क्रॉस ब्रीड बोलते हैं. ओके बच्चा. Management of poultry birds. Shelter. They are kept in wire cages or poultry shells. Poultry birds are not kept in open as they can be killed by predators. Shelters they are kept in wire. इनको ना वायर केजेस और poultry sheds में प्रोटेक्ट करके रखा जाता था. Poultry birds are not kept in open as they. क्योंकि उनको ओपन क्यों नहीं रखा था poultry birds को? अगर कोई प्रीडेटर्स हैं उनको किल कर देगा तो उनको एक प्रोटेक्शन के साथ वायर केजेस में रखा जाता था. Feed. It include meshed cereals such as bajra, maize, ragi, bran, wheat, groundnut, cake. Disease of poultry bird. ये सब फीड्स हैं बच्चे ये जो कि प्रोवाइड करते हैं हम पोल्ट्री बर्ड्स को. डिजीज क्या है? पोल्ट्री बर्ड्स आर वेरी prone to disease. Some of disease आर पोल्ट्री बर्ड्स आर लिस्टेड. बैक्टीरियल डिजीज बहुत ईजिली हो जाता है. फॉल, कॉलेरा, क्रोइजी, सैल्मोनेलोसिस, डायरिया और चिक. वायरल डिजीज रेनिकेट और फाउल पॉक्स. Fungal disease, aspergillosis. These all are the disease of poultry birds. Okay, students. So learn this
at home. Thank you and have a nice day.